हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 28 मई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे अफ्रीका डे के बारे में, जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। ये भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है, इसलिए काफी न्यूज में रहा है। इसके बाद हम देखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा बिग आइलैंड के बारे में, पीएम अजय स्कीम के बारे में देखेंगे, कनाडा के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे क्यू फोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसको हाल ही में इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements are correct in respect of quadrilateral security dialogue? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद जो है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है और बताना है कि इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द फर्स्ट इन पर्सन क्वाड लीडर्स समिट was hosted by the United States. And second, Quad countries cooperate on vaccine distribution and resilient supply chains. And third, Quad operates under the framework of the United Nations Security Council. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है क्वाड से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं So the first physical Quad Leaders Summit was held in Washington, D.C. in 2021, and it was hosted by the United States under President Joe Biden. So leaders of India, Japan, Australia, and United States participated in the summit. Earlier, Quad meetings were conducted virtually due to COVID-19 pandemic. So Quad cooperation extends beyond only security and defense matters, and the grouping launched initiatives for COVID-19 vaccine production and distribution. So member countries also cooperate on critical technologies and semiconductor supply chains. So no resilient supply chains help reduce overdependence on a single country for essential goods. सो ये जो ग्रुप है ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है। इट इज नॉट अ बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इट डज नॉट फंक्शन अंडर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फ्रेमवर्क। So the grouping has no formal treaty, charter, or permanent secretariat. Decisions in Quad are based on consensus among member countries. तो अभी हाल ही में ये जो क्वाड ग्रुप है ये काफी न्यूज में रहा क्योंकि इसकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई है। सो क्वाड के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। And Quad is aimed at promoting regional security and economic cooperation in the Indo-Pacific region. और आपने देखा कि इसमें 4 कंट्रीज हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the official theme for the commemoration of the Africa Day on 25th of May 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 25 मई 2026 को अफ्रीका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला जो समारोह है
उसका आधिकारिक विषय क्या रहा है? आपके ऑप्शंस हैं 63 years of unity, integration and development. Let's celebrate together. Second, sustainable development through regional integration and mutual trust. Third, celebrating 60 years of Pan-Africanism and economic growth. And fourth, strategic partnership for an integrated and politically united Africa. आपको बताना है हाल ही में जो अफ्रीका दिवस सेलिब्रेट किया गया है उसका थीम क्या रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका थीम रहा है 63 years of unity, integration and development. Let's celebrate together. आप देख सकते हैं The African Union is celebrating its 63rd anniversary, marking the establishment of the Organization of African Unity in May 2026. So, the theme for the 2026 Africa Day commemoration is 63 years of unity, integration, and development. Let's celebrate together. So the event marks the transition and history from Organization of African Unity, established in 1963, to current African Union. And the celebration held in May 2026 with the official Africa Day ceremony occurring on 25th of May 2026. And the venue of the commemoration is the African Union headquarters located in Addis Ababa, Ethiopia. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India's first geothermal power project is being developed in which state or UT? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना जो है वो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में विकसित की जा रही है। के ऑप्शंस हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर न्यू दिल्ली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये किया जाएगा लद्दाख में। आप देख सकते हैं Ladakh approved the extension of an MOU with Oil and Natural Gas Corporation for another 5 years to develop India's first geothermal power project. So the project will be established at Puga Valley at an altitude of over 14,000 feet. And this project will be implemented in phases including drilling geothermal wells up to 1,000 meters. Testing, evaluation and commissioning of the pilot project will begin during financial year 2026 and 27. So this initiative aims to promote renewable and sustainable energy in the Himalayan region. तो आप ध्यान रखेंगे इंडिया का जो पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो डेवलप किया जाएगा लद्दाख में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The big island recently seen in the news is part of which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला ये जो बिग आइलैंड है ये किस देश का हिस्सा है। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, चिले, इंडोनेशिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। सो यहां पर आपसे बिग आइलैंड के बारे में पूछा जा रहा है कि ये हाल ही में न्यूज में रहा है, आपको बताना है कि ये किस देश का हिस्सा है।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये पार्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का, आप देख सकते हैं। सो ये अभी हाल ही में न्यूज में रहा, बिकॉज एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.0 struck near Honolulu in the Big Island of Hawaii recently. इस आइलैंड की बात करें तो it is the largest Hawaiian island, and Hawaii is an island state of the United States in the Pacific Ocean. So it covers an area of about 10,432 square kilometer, which is larger than all of other Hawaiian islands combined. And it is made up of 5 volcanoes, जो कि है कोहाला, Hualalai, Mauna Kea, Mauna Loa, and Kilayu. So the most active of these volcanoes contributing to the majority of the island's growth today are Mauna Loa and Kilayu. Mauna Loa, the quieter of the two, has the most mass of any mountain on Earth. And Kilayu is one of the most active volcanoes on the planet, and it has been consistently erupting since 1983. So the islands features diverse climates ranging from tropical rainforest to volcanic deserts and snow-capped summits. And the Hawaii's Volcanoes National Park, a UNESCO World Heritage Site, is located on the island. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो बिग आइलैंड है, ये हवाईयन आइलैंड का सबसे बड़ा रीजन है, और इस पे जिस देश का अधिकार है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Pradhan Mantri Ajay scheme, consider the following statements. So यहाँ पर प्रधानमंत्री अजय स्कीम जो है, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एम्ड एट द सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, enhancing educational opportunities and improving infrastructure in SC dominated areas. और थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज implemented by the National Commission for Scheduled Castes. और इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है पीएम अजय योजना से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि पीएम अजय स्कीम जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ना कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So the Ministry of Social Justice and Empowerment launched PM Ajay portal and Ajay mobile application to fully digitize implementation of the Pradhan Mantri Anusuchit Jati Abhyuday Yojana. So ये जो पीएम अजय स्कीम है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में। So it is aimed at the socio-economic upliftment of the scheduled castes. And it is a merger scheme of the three erstwhile centrally sponsored scheme, जिनका नाम है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान, एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना. So it focuses on reducing poverty, enhancing educational opportunities, and improving infrastructure in SC dominated areas. और आपने देखा कि इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कनाडा। सो यहाँ पर कनाडा से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री in the world in area. And second, it is bounded by the Arctic Ocean and Atlantic Ocean only. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है कनाडा से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं The Union Minister of Commerce and Industry, the largest ever Indian business delegation to Canada in the land, marked a step towards the full revival of India-Canada economic relations. इस वजह से अभी कनाडा काफी न्यूज में रहा है। साथ ही अगर हम कनाडा के बारे में और बात करें तो कनाडा इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका and it is the second largest country in the world in area after Russia. So कनाडा शेयर्स बॉर्डर विद अलास्का जो कि एक नॉन कंटेजियस यूएस स्टेट है टू द नॉर्थ वेस्ट एंड 12 अदर यूएस states to the south. So the border of Canada with the US is the longest bi-national land border in the world. And it is bounded by the Arctic Ocean to the north, by Atlantic Ocean to the east, and the Pacific Ocean to the west. कनाडा की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है ओटावा। यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो कनाडा है 7 क्लाइमेटिक रीजन्स और जोन्स जो कि है आर्कटिक, सब आर्कटिक, प्रेयरी, ग्रेट लेक्स, कॉर्डिलेरियन, ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। इसके साथ ही यहाँ के जो मेजर माउंटेन्स हैं वो हैं रॉकी माउंटेन और साथ ही लॉरेंशियन माउंटेन्स। यहाँ की मेजर रिवर्स हैं मैकेंजी रिवर, यूकॉन रिवर एंड सेंट लॉरेंस रिवर्स। साथ ही यहाँ की जो 5 ग्रेट लेक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है होती है न्यूज के लिए। वो लेक्स हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो एंड इरी। So they form a natural boundary between Canada and the United States. And among these 5, only Lake Michigan lies entirely within the United States. और साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ बॉक्साइट, आयरन ओर, निकल, जिंक, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, डायमंड्स एक्सेट्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the primary objective of the Q-Force platform launched by the Indian Army in May 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा मई 2026 में लॉन्च किया गया जो क्यू फोर्स प्लेटफॉर्म है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है टू फोकस ऑन स्ट्रक्चर्ड डाटा जनरेशन एंड एआई enabled एनालिटिक्स। सेकेंड, to create a natural language processing powered interface for soldiers. Third, to streamline logistics, inventory, and sustainment management across terrains. And fourth, to provide full integration of operations with artificial intelligence. यहाँ पर आपसे क्यू फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है जिसको हाल ही में इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है।
आपको बताना है कि क्यू फोर्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका उद्देश्य है टू स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री एंड सस्टेनमेंट मैनेजमेंट अक्रॉस टेरेन्स। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। सो द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड टू न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एक तो है कौटिल्य एंड सेकेंड वन इज Q Force on 25th of May to enhance real-time decision making and battlefield support. So जो Q Force है, this platform is specifically aimed at streamlining logistics, inventory and sustainment management across varied operational terrains. So it is designed to improve the efficiency of the Army's supply chain and maintenance system. इसके साथ ही कौटिल्य की बात करें तो अनलाइक क्यू फोर्स, द कौटिल्य प्लेटफॉर्म फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर्ड डाटा जनरेशन, AI enabled analytics and a natural language processing powered interface. So both platforms represent the Army's shift towards integrating artificial intelligence and data-driven systems to sharpen battlefield decisions. इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज ईयर ऑफ द नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, एंड द ईयर 2027 इज टारगेटेड फॉर द फुल इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।